Hello everyone. So today we have to start chapter 2 part 2 here. So first part is about Sahib. Okay, now the second part is about Mukesh. So I have to start read page number 17. I want to drive a car. कि मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announced. कि वो अनाउंस करता है कि उसको मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. Do you know anything about cars? I asked. अनीस चंग उसको पूछती है कि तुम कार के बारे में क्या जानते हो. I will learn to drive a car, he answered. कि मैं कार चलाना चाहता हूँ. Looking straight into my eyes, his dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fill his टाउन फिरोजाबाद. कि फिरोजाबाद में ऐसी वो ड्रीम देख रहा है कि फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल. फिरोजाबाद फेमस है बैंगल के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. के फिरोजाबाद की जो भी फैमिली है वो एक बैंगल मेकिंग का काम करते हैं. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnace, welding, glass, making bangles for all the women in the land. It seems कि वहाँ पे जो भी कोई भी काम करता है तो वो बैंगल मेकिंग का ही काम करता है. पट्टी के अंदर ग्लास को गर्म करके उसको वेल्डिंग करके वो बैंगल्स बनाते हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. और मुकेश की फैमिली उसमें से एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in dimly cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. तो वहाँ के सारे जो बच्चे भी हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो फर्नेस यानी वो भट्टी में काम करते हैं. जैसे कि 20,000 चिल्ड्रंस वहाँ पे उसमें ये काम के लिए भेजे जाते हैं और वो ये सारा काम करते हैं. और वहाँ पे लाइट कम होती है और डे लाइट में उनको ये भट्टी के अंदर गर्मी में काम करना पड़ता है. तो ऐसे वो सर्वाइव करते हैं. मुकेश और वो जो ऐसे सर्वाइव करते हैं उनको अपने आइज़ के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं या फिर वो अपनी ब्राइटनेस घुमा देते हैं आइज़ की. तो मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम. तो वो अनीस चंग को अपने घर ले जाता है. एंड विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड. कि वो अपना जो कुछ रहने का है वो रीबिल्ड कर रहे हैं. वी वॉक डाउन stinking lands chalked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state. के सारे एक साथ में रह रहे हैं. और वहाँ का जो वो चलते चलते जा रहे हैं तो वहाँ का जो उन्होंने देखा वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे गार्बेज रास्ते में गिरा है, नाली में पानी से बह रहा है, वॉबी डोर्स है, नो कहाँ पे भी विंडो नहीं है उनके, जो भी वो हर जैसे झोपड़े में रहते हैं वहाँ पे. ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. और उसने वो घर का दरवाजा खोला. We enter a half-built shack. तो half-built झोपड़े में जैसे वो एंटर हुए. In one part of it, thatched with dead grass से बनी है, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो वहाँ पे वो firewood stove पे spinach leaves बन रही है, sizzling हो रहा है. On the ground in a large aluminium platters are more chopped vegetables. और वहाँ पे aluminium के dishes में chopped vegetables रखे हैं.
A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. तो एक नाजुक सी कमजोर एक यंग वुमन है जो इवनिंग का मेल बना रही है पूरे घर के लिए. Through eyes filled with a smoke she smiled. तो उसकी आंख में वो स्मोक चली गई और वो स्माइल दे रही है. She is the wife of मुकेश elder brother. मुकेश की elder brother की वाइफ है. Not much older in years. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. कि कोई भी बड़ा एल्डर पर्सन घर में आएगा तो वो अपने आप को घूंघट में रख लेगी और दूसरी वॉल की तरफ चली जाएगी. As custom demands, daughters-in-law must veil their face before male elders. In this case, the elder in an improvised bangle maker. Despite a long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाते हैं, वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने नहीं भेज सकते हैं और अपने ओनली वन आर्ट भेज सकते हैं और वो है बैंगल मेकिंग का. It is his karma, his destiny, says मुकेश grandmother. कि मुकेश की grandmother बोलते हैं कि यही हमारा एक काम है. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangle. कि वो उसकी grandmother है और उसने देखा है कि उसके husband खुद वो पॉलिशिंग करते ग्लास की उन्होंने अपनी आंखें खो दी है, अभी वो ब्लाइंड हो गए हैं. तो वो बोल रही है कि नहीं, हमारा यही एक काम है और वो ही हम करेंगे. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house. Every sunny gold, pedigree. 1 minute, I have to. Okay, every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद. तो सारे जगह पे वहाँ देखोगे तो सारे बैंगल मेकर्स ही है. Sprinkles of bangles, sunny gold, pedigree, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lies in mounds in unkempt yard and piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes at the shanty town. तो वहाँ पे आपको बैंगल्स कई कलर की मिल जाएगी और जो उनका काम है वो क्या है, ओनली बैंगल मेकिंग. और एक वो हैंड कार्ट में भी क्या बेचते हैं, ओनली बैंगल्स. And in a dark hut man's next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mother. तो वहाँ पे वो दूसरे घर में देखती है तो एक लड़का और एक लड़की जो है अपने फादर मदर के साथ वहाँ पे वेडिंग के लिए बैठे हुए हैं. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. तो इस तरह वो एडल्ट में जब जाएंगे तब तक तो वो अपनी आंखें भी कमज़ोर कर लेंगे या उनकी आंख भी ब्लाइंड हो जाएगी. कैसे? फर्नेस में और ऐसे अंधेरे में काम करने से. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering piece of glass. यहाँ पे एक सविता नाम की गर्ल है जो ड्रैप पिंक कलर का ड्रेस पहना है. सिट्स अलोंगसाइड अ अर्ली वुमन सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास और वो ग्लास को सोल्डरिंग कर रही है. As her hands move mechanically like the tongues of machine, I wonder if she knows the sanctity the bangles she helps make. तो वो अपने मदर को हेल्प कर रही है बैंगल मेकिंग में. It symbolizes an Indian woman's सुहाग. Auspicious in marriage. तो बैंगल जो है वो एक सुहाग की निशानी है
और स्पेशली इन मैरिज में हम बैंगल्स जो ब्राइड होती है वो पहनती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर head is draped with a red veil and her hands dyed red with the henna, and red bangles rolled onto her wrist, and she will then become a bride, like the old woman beside her who became a many years ago. तो यहाँ पे जब ब्राइड बनती है तो कैसे हाथों में मेहंदी लगाती है, फिर माथे में सिंदूर होता है और हाथ में बैंगल्स होती है और वो एक ब्राइड होती है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, कि वो भी एक दिन ब्राइड बनी थी। एंड शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथ में वो बैंगल्स है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसके आंखों में कोई लाइट नहीं है। एक वक्त से बाहर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ अ जॉय, कि उसने बोला कि अभी ऐसा कोई दिन नहीं आया कि हम अच्छे से खाए हैं। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। दैट्स व्हाट शी हैज रिपीट हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इन मेक अ हाउस फॉर अ फैमिली टू लिव इन, और मैं ऐसे अपने फैमिली के लिए घर भी नहीं बना पाता हूँ। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head, कि वो इतने अपनी लाइफ टाइम में अपने आप के लिए कुछ कर नहीं पाता है, फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाता है, कि नहीं रूफ बना सकता है अपने हेड के लिए। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. तो ये बैंगल मेकिंग का काम है जो उनको अच्छा खाना भी नहीं मिल सकता, उनके लिए रहने का घर भी नहीं बन सकता, उसमें खुश नहीं हो सकता है ये बैंगल मेकिंग के बिजनेस में। The young man echoed the lament of their elders. Little has moved with time, it seems in फिरोजाबाद, कि वो अपने एल्डर्स का ही जो बिजनेस है वही वो आगे चला रहे हैं। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. So ऐसे ये लोग यहाँ पे कुछ भी करना चाहे, अपने कोई भी सपना पूरा करना चाहे तो वो कर सकते नहीं है। उनका जो दिमाग होता है वो सुन हो जाता है, बिकॉज वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, और उनका जो बिजनेस होता है बैंगल मेकिंग का वो भी उनको कंटिन्यू करना पड़ता है। सो व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव? आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. तो उन्होंने पूछा कि आप लोग अपना ही कुछ साथ मिलकर क्यों नहीं ऑर्गेनाइज करते। एक ग्रुप को पूछा तो उन्होंने बोला कि मिडल मैन ने उन सबको, उसके फादर और उसके फोर फादर्स को क्या किया, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम खुद कुछ करना चाहें, वी आर द वंस हु विल बी ड्रैग्ड अप, हॉल्ड, that means dragged up by the police, beaten and dragged to jail to doing something illegal. They say कि कुछ इलीगली कर रहे हैं, ऐसे करके हम लोग को जेल में बिठा देते हैं। एंड देयर इज नो लीडर अमंग देम, इसलिए यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कि कोई अलग करना चाहे तो भी कोई किसी को देखता नहीं है। Their fathers are as tired as they are, के फादर भी थक गए हैं जैसे वो थक गए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty and pathetic into and to injustice. तो उनके लिए कोई लड़ता नहीं है और कोई आगे नहीं आता है, तो इसलिए वो ऐसे ही जीते हैं पोवर्टी में। Listening to them, I see two distinct worlds. तो उनको सुनने के बाद उनको लगा ये टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड है। वन ऑफ द फैमिली कॉच इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, कि कोई खींच के पॉवर्टी में ले जाता है, उनमें वेब में फंस जाते हैं, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, कि जो कास्ट में जन्मे है उसी में वो फंस के रह जाता है। द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स,
और दूसरा जो सर्कल है वो है साहूकार का। एंड द मिडल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द bureaucrats, and the politician. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down before he is aware कि वो लोग उनको आगे आने नहीं देते हैं, कुछ बढ़ने नहीं देते हैं, और जो वो अगर पहले से अवेयर हो जाए तो he accept it is naturally his father to do anything else would mean to dad। जैसे कुछ अलग करना चाहोगे तो उसके फादर बोलते हैं वैसे कि एक डेयर करना जैसा होगा। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और उसका डेयरिंग का कोई ग्रोइंग पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ ईटिंग मुकेश आई एम चीयर्ड, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। कि मुकेश को पूछा कि व्हाट यू वांट टू डू, तो मुकेश चीयर्ड होके बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। He repeats, he will go to garage and learn, but the garage is a long way from his home। कि वो गैरेज जाकर सीखना चाहता है, लेकिन जो गैरेज है वो उसके घर से बहुत लॉन्ग वे पे है। I will walk, he insists, कि मैं वॉक करके जाऊँगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent। कि वो उन्होंने दूसरा उसको पूछा कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, कि तुझे तेरा ड्रीम है फ्लाइंग प्लेन को उड़ाना। ही इज सडनली साइलेंट एंड से नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड को देख कर बोला नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज अ एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। कि उसकी वो परेशानी रिग्रेट में नहीं टर्न हो, वैसे उसने मरमर करके मतलब ऐसे ही मन में बोल दिया। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। कि वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, जो कार उसने देखी है कि इधर उधर जाके उसी स्ट्रीट में। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद के, कुछ जो एरोप्लेन्स होते हैं वो फिरोजाबाद से ऊपर चले जाते हैं। दैट मीन्स वो बोलता है कि जो मैंने देखा है वो मैं कर सकता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे साहिब और मुकेश की दो अलग अलग स्टोरी है, जो अपने चाइल्डहुड से लेकर कुछ नया नहीं कर पाते हैं, तो वो दोनों की स्टोरी है। साहिब जो है रेक पिकर है, यानी कचरे कूड़े उठाने वाला, और उसमें से वो अपनी फैमिली उसकी सर्वाइव करती है। और जो है दूसरा वो है मुकेश, जो फिरोजाबाद से है और वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक। So here we have to complete our second chapter, Lost Spring, written by Anish Chand. Thank you.